Hello everyone, how are you all doing? In this video, we are going to learn about another topic for direct and indirect speech. Okay, we have already seen about positive sentences. How do we change it from direct to indirect? In this video, we will see that how we can change modals and interrogative sentences from direct to indirect. So we will recall first what is direct speech and what is indirect speech. Direct speech means exact words by the speaker. We enclose them in quotation marks. Okay. And indirect speech means the words of the speaker are reported and we do not use quotation marks. Okay. And while we change it from direct to indirect, we make few changes, right? जैसे कि we remove the quotation marks and we introduce conjunction that and we report the words of the speaker in past tense because indirect speech is always in past tense. Okay, these were the basic rules that we saw in the last video. These rules will follow here also. So we will see what are modals. Okay, we have done this previously also, but for every new topic we require modals also, right? So modals are helping verbs which indicate permission, possibility, obligation, advice, ability, prohibition, requests and preference. Okay, these are the modals, okay, which can indicate these many things. तो मॉडल्स रिपोर्टेड स्पीच में कैसे यूज होता है? रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? तो जब डायरेक्ट स्पीच में होगा तो वो होंगे कैन, मे, विल, शैल और मस्ट, मतलब कि सारे मॉडल्स जो होंगे वो प्रेजेंट टेंस में होंगे, ठीक है? और जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो हो जाएंगे पास्ट टेंस में। जैसे कि कैन का हो जाएगा कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड एंड मस्ट का हैड टू. Okay, while we change other things, we do change modals also in past tense. So, for example, she said, I can write a poem. तो उसने कहा मैं पोयम लिख सकती हूँ, ठीक है? तो can क्या है? ये मॉडल वर्ब है here. Okay, so what we will do? First, we will remove the quotation marks, okay, and introduce conjunction that, ठीक है? फिर आई है, आई किसको रेफर कर रहा है? शी को रेफर कर रहा है, तो हम यहाँ पे शी लिख देंगे और कैन का पास्ट टेंस हम कुड कर देंगे और बाकी का स्टेटमेंट राइट अ पोयम वो हो जाएगा सेम, ठीक है? तो शी सेड दैट शी कुड राइट द पोयम, ठीक है? तो ये बेसिक रूल्स जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस चेंज करते हैं वही रूल्स अप्लाई होंगे. Just the thing is that we will change modals also. Okay. Next, he said, comma, inverted commas, I may call a doctor. उसने कहा मैं शायद डॉक्टर बुलाऊं. ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? बेसिक चेंजेस फर्स्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम यहाँ पे दैट इंट्रोड्यूस कर देंगे, मे का हम माइट कर देंगे और आई रेफर कर रहा है यहाँ ही को, तो ये यहाँ पे हम ही लिख देंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा उसका इनडायरेक्ट स्पीच? ही सेड दैट ही माइट कॉल अ डॉक्टर, ठीक है? तो ऐसे चेंज होते हैं मॉडल्स. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वी मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम. ओके, तो बेसिक चेंजेस दैट रिमूव कर देंगे, दैट इंट्रोड्यूस करेंगे. मस्ट का क्या हो जाएगा? हैड टू हो जाएगा, ओके, और वी का हो जाएगा दे, क्योंकि वी रिफर कर रहा है प्रोनाउन दे को, ठीक है?
तो कैसे चेंज हो जाएगा? They said that they had to finish the work in time. Okay, this is how we change models. We'll see one more example. George said, I will not do that. ठीक है, तो आई किसको रेफर कर रहा है? जॉर्ज को। जॉर्ज क्या है? मेल है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो मेल के लिए हम ही यूज करेंगे और विल को हम चेंज कर देंगे वुड में, ठीक है, और दैट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जॉर्ज सेड दैट ही वुड नॉट डू दैट। ओके, नेक्स्ट, he said I shall start a job. Okay, I refers to he. Okay, so we will use he. shall हो जाएगा should, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम कर देंगे that. ठीक है, तो he said that he should start a job. Okay, this is how we change the models. But what if the model is in past tense in direct speech? अगर डायरेक्ट स्पीच में ही जो मॉडल है वो पास्ट टेंस में है, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे और जो बेसिक चेंजेस है, ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन चेंज करना, दैट ऐड करना, वो सारे चेंजेस हम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई माइट ईट अ केक। तो माइट क्या है? मॉडल है और ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो हम उसका वही का वही रखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, दूसरे चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट गए और उसकी जगह हमने दैट ले लिया। आई रेफर कर रहा है किसको? शी को, तो हम यहाँ पे शी कर देंगे और बाकी का स्टेटमेंट एज इट इज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया? शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक। ओके, और सारे इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डेविड सेड आई कुड बाय अ कैमरा। ओके, कुड है मॉडल, ठीक है, और पास्ट टेंस में है तो हम कुड का कुड ही रखेंगे। ठीक है, आई किसको रेफर कर रहा है? डेविड को रेफर कर रहा है, जो कि एक मेल है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे ही में चेंज कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और दैट लगाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? डेविड सेड दैट ही कुड बाय अ कैमरा। ओके, दिस इज वेरी सिंपल. Okay, you just have to focus on rules, that how you have to change from direct to indirect. Okay, if you remember the basic rules and if you remember that only past tense is used in indirect speech, then it will be very easy for you guys. Okay, we'll see one more example. They said, comma inverted commas, we would watch a movie. Okay, so would is a model and it is already in past tense, so we will use as it is. We refers to the pronoun they. Okay, so while changing in indirect speech we will use they and remove quotation marks and add that. Okay, so the statement will be, they said that they would watch a movie. Okay, so this is how we change the models. Now we will see the rules for interrogative sentences. Okay, interrogative sentences मतलब जो questions पूछते हैं, which ask questions. Okay, and it ends with a sign of interrogation, मतलब कि it ends with a question mark. Okay, for example, do you live here? क्या आप यहाँ रहते हैं? Have you ever watched Terminator 3 movie? क्या आपने कभी टर्मिनेटर 3 मूवी देखी है? Is it raining? क्या बारिश हो रही है? ठीक है, ऐसे सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो सवाल पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस.
ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, एक होता है जनरल क्वेश्चंस और दूसरा होता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं येस नो टाइप के। ठीक है, उनका जो आंसर आता है बेसिकली येस या नो में आता है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जनरल क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग verbs. फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, कैन, मे, विल। ओके, ऐसे सारे जो हेल्पिंग verbs हैं, अगर क्वेश्चन उनसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो होते हैं जनरल क्वेश्चंस और उनका जो आंसर आता है बेसिकली यस नो में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी फॉर द मूवी? ओके, क्या आप मूवी के लिए रेडी हैं? तो व्हाट यू विल से ईदर यस और नो। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, कैन आई मेक अ कप ऑफ टी? ठीक है, क्या मैं चाय बना सकती हूँ? तो आप क्या बोलोगे, ईदर यस और नो। ओके, सो जनरल क्वेश्चंस आर ऑफ यस नो टाइप। नाउ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, सो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर ऑफ डिटेल्ड टाइप। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जो आंसर आएगा वो आपको डिटेल में देना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं WH क्वेश्चन वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं WH क्वेश्चन वर्ड से और उनका जो आंसर आता है वो आता है डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? तो how you will reply, I am doing some work, I am drinking coffee, or you can say whatever you are doing at that time. Okay, you can respond according. आंसर कैसा आया, डिटेल आंसर आया। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन मोर क्वेश्चन, when will you reach at the theater? ओके, आप थिएटर कब तक पहुंचेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे कि आई विल बी देयर इन 5 minutes, और यू कैन से आई विल रीच इन 20 minutes। ओके, तो आंसर कैसा आया, डिटेल्ड आंसर आया, राइट। सो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होंगे WH क्वेश्चन वर्ड से और उनका आंसर होगा डिटेल्ड, जबकि जनरल क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से और उनका आंसर होगा यस नो में। ठीक है, ये होते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब रूल्स हैं कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, वो चेंज हो जाता है आस्क्ड में। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस या मॉडल वर्ब्स में हम सेड टू का सेड टू ही यूज कर रहे थे। ठीक है, बट अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं उसको चेंज करना है तो हम सेड टू नहीं बट आस्क्ड लिखेंगे, या तो फिर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। हमें सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब है स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब कि अगर आंसर यस नो टाइप का है तब हमें इफ और वेदर यूज करना है इन प्लेस ऑफ दैट। जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट यूज करते हैं, ठीक है, उस जगह पे हमें इफ और वेदर यूज करना है जब हमारा जो क्वेश्चन है वो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो या उसका आंसर यस नो में होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आंसर यस नो टाइप के हैं तो हम उसमें इफ या वेदर यूज करेंगे। यू कैन यूज एनी ऑफ दोस। ठीक है, बट अगर रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, ठीक है, अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ना इफ यूज करेंगे ना ही कोई और वर्ड यूज करेंगे। ओके, और हम दैट भी यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, ये होता है एक इम्पॉर्टेंट रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, और एक फुल स्टॉप लगता है एट द एंड ऑफ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो रूल्स क्लियर हो गए हमें, राइट? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो सेट टू होता है उसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, और अगर क्वेश्चन येस नो टाइप का है तो हम इफ और वेदर यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ दैट। बट अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है WH क्वेश्चन वर्ड से तो हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, न इफ न वेदर ना ही दैट। ओके, हम वही WH वर्ड यूज करेंगे। ओके, और लास्ट में हम फुल स्टॉप ऐड करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं ऐड करेंगे, उसको एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आर यू कमिंग टू द कॉन्सर्ट। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, मतलब कि ये येस नो टाइप का क्वेश्चन है। तो येस नो टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर यूज करेंगे, तो हमने यहाँ इफ यूज किया है। ओके, और सेट को हमने आस्क्ड कर दिया है। ओके, और यहाँ पे यू किसको रिफर कर रहे हैं? जो सामने लिसनर है उसको। ठीक है, तो लिसनर अपने आप को क्या बोलेगा? आई बोलेगा। ओके, ही विल से आई टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, एंड द स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर यू कमिंग टू द कॉन्सर्ट। ठीक है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इफ आई वॉज कमिंग। ओके, वी हैव टू चेंज द टेंस ऑल्सो। ठीक है, सो इफ द क्वेश्चन इज आर यू कमिंग टू द कॉन्सर्ट, तो हम कैसे लिखेंगे? ही आस्क्ड इफ आई वॉज कमिंग टू द कॉन्सर्ट एंड अ फुल स्टॉप। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। शी सेड व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट कॉन्सर्ट। तो उसने क्या पूछा कि नेक्स्ट कॉन्सर्ट का शेड्यूल क्या है। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट हो रहा है? व्हाट से, मतलब WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम न दैट लगाएंगे, न इफ और ना ही वेदर, हम वही का वही WH वर्ड यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, सेट की जगह पे हम आस्क्ड यूज करेंगे। ठीक है, और टेंस चेंज कर देंगे, इसका हम वॉज कर देंगे। ओके, और बाकी का स्टेटमेंट वही का वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई प्रोनाउन या और ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे हमें चेंज करना है। ओके, सो शी सेड व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट कॉन्सर्ट। तो उसको कैसे कैसे चेंज कर रहा है हमने? शी आस्क्ड व्हाट वाज द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट कॉन्सर्ट। ठीक है, उसने पूछा कि नेक्स्ट कॉन्सर्ट का शेड्यूल क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हैव यू सीन माई मोबाइल एनीवेयर, सेड फादर टू सन। मतलब पापा ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने मेरा मोबाइल कहीं देखा है। ठीक है, तो क्या किया? इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है कि तुमने देखा है कि नहीं, तो वो इंक्वायरी हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंक्वायर्ड। ठीक है, तो फादर इंक्वायर्ड हिज सन। ठीक है, फादर टू सन मतलब फादर किसको इंक्वायर कर रहा है? उसके बेटे को, तो फादर के लिए हमने हिज यूज किया। ठीक है, ऐसा प्रोनाउन। ओके, और क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है? हैव से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जनरल क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर यस नो में आएगा। ठीक है, अगर आंसर यस नो में आता है तो हम इफ यूज करते हैं। ओके, एंड यू रिफर्स टू हियर सन। ठीक है, यू किसको? सन को रिफर करता है यहाँ पे, तो हम सन मेल है तो हम वहां पे ही लिख देंगे। ठीक है, और ये हैव है तो मतलब कि परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड हो जाएगा।
ओके, और सीन हिज मोबाइल, हिज मोबाइल मतलब फादर्स मोबाइल, तो माय मोबाइल का क्या हो जाएगा, हिज मोबाइल। ओके, वी हैव टू चेंज ऑल द प्रोनाउंस। ठीक है, माय का किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, माय रेफर कर रहा है यहाँ पे फादर को। क्यों, क्योंकि फादर अपने बेटे से पूछ रहा है, राइट। तो माय रिफर्स टू फादर, तो फादर पूछ रहा है, तो हम फादर के लिए वापस से हिज यूज कर रहे हैं। ओके, तो स्टेटमेंट कैसे बना, फादर इंक्वायर्ड हिज सन इफ ही हैड सीन हिज मोबाइल एनीवेयर, और यू कैन ऑल्सो यूज वेदर। फादर इंक्वायर्ड हिज सन वेदर he had seen his mobile anywhere. ठीक है, this is how we change the interrogative sentences. Okay, we will see some more examples. She said, where are you going? Okay, तो she said, where are you going? तो you किसको refer कर रहा है, मुझे। ऐसा हम सपोज कर सकते हैं कि जो लिसनर है उससे पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो you को हम I में चेंज कर सकते हैं। ओके, और शी आस्क्ड मी लिख सकते हैं अगर हम चाहे तो। क्यों, क्योंकि मुझसे पूछ रही है। ओके, तो वी कैन ऐड मी कि शी आस्क्ड मी। ओके, और डब्ल्यू एच वर्ड है तो हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और वही का वही डब्ल्यू एच वर्ड यूज करेंगे। दैट, इफ, वेदर, ये सब हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और टेंस चेंज कर देंगे, आर का वॉस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट लिया है फिर हेल्पिंग वर्ब लिया है। क्यों, क्योंकि हम स्टेटमेंट पॉजिटिव बना रहे हैं, हम इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो वेयर के बाद पहले सब्जेक्ट आ जाएगा फिर वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ऐसे बनेगा इसका आंसर। ओके, one more example. Katie asked, "Can you answer the phone while I am out?" तो कैटी ने बोला कि क्या तुम मेरा फोन आंसर करोगी जब मैं बाहर हूं। राइट, तो किसको पूछ रही है, यू को पूछ रही है, तो यू रिफर करेगा यहाँ पे लिसनर मतलब कि मी। ओके, और जब उसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे यू का यहाँ आई हो जाएगा इफ के बाद। ओके, इफ क्यों लगाया, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर यस नो टाइप में आएगा, तो हम इफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, मॉडल भी चेंज होगा। ओके, और यहाँ पे आई एम का हमने शी वॉज कर दिया है। आई रेफर कर रहा है केटी को। ठीक है, और केटी एक फीमेल है तो हमने उसकी जगह शी लिखा, और एम प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में हम वॉज कर देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड आंसर द फोन व्हाइल शी वॉज आउट। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका फोन आंसर करूंगी जब वो बाहर हो। ओके, तो हमारे पास कितने टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव एंड ऑप्टेटिव। ठीक है, जिसमें असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस, और एक्सक्लामेटरी मतलब जो फीलिंग्स बताते हैं, कुछ इमोशंस बताते हैं। ओके, इम्परेटिव मतलब जो कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं वो, और ऑप्टेटिव मतलब जो होप, प्रेयर या विश एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं। तो पिछले वीडियो में हमने असर्टिव कर लिए, ये वाले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देखे कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्लामेटरी, एम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, सो टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय,
Thank you.